آج بدھ ہے اور ستمبر کی 17 تاریخ۔ ZBC سربین سے میں ہوں جاوید چوہدری۔ اسرائیل کے غزہ شہر پر قبضے کے لیے شدید حملے جاری، 24 گھنٹوں کے دوران 59 افراد ہلاک، 386 زخمی۔ Over the past 24 hours, following extensive discussions with the political echelon, the IDF has significantly expanded its operation in Gaza City. نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ دوحہ پر حملہ جائز تھا کیونکہ قطر حماس کو پناہ اور مدد فراہم کرتا ہے۔ Well, I've said repeatedly that Israel's decision to act against the Hamas terrorist leadership in Qatar was a wholly independent decision by Israel. جانیے نیپال میں پرتشدد مظاہروں کے ایک ہفتے بعد کیا صورتحال ہے۔ ان کا کرب اب غصے میں بدل رہا ہے۔ میرا بیٹا مارا گیا، یہ عورت کہہ رہی ہے۔ اتنے سارے خاندان اور اتنا دکھ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی 75ویں سالگرہ، کیا BJP کا ریٹائرمنٹ اصول ان پر بھی لاگو ہوگا؟ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی 75 برس کے ہو گئے ہیں۔ سیاست میں ویسے تو عموماً عمر کی پابندیاں نہیں ہوتی، لیکن اس کا ذکر اس لیے آیا کہ مودی 11 سال قبل جب وزیر اعظم بنے تھے، اس وقت انہوں نے اپنے سیاسی گرو اور BJP کے سب سے بڑے رہنما LK اڈوانی اور دیگر سینئر رہنماؤں کو یہ کہہ کر سیاست سے ریٹائر کر دیا تھا کہ وہ 75 برس سے زیادہ عمر کے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کا کہنا ہے کہ برائی کو روکنے کے لیے 3 صوبوں میں انٹرنیٹ بند کر دیا ہے۔ سیلاب متاثرین کی کشتیوں پر ریسکیو، نجی مالکان پر زائد معاوضے کا الزام۔ بعض مالکان سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کا خاصا بھاری معاوضہ وصول کر رہے ہیں یا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور جانیے پاکستان میں کم عمر لڑکیوں کے لیے HPV ویکسین کتنی اہم ہے۔ گورنمنٹ نے پاکستان میں 15 ستمبر سے 9 سے 14 سال کی لڑکیوں کو سرنج کے ذریعے HPV ویکسین لگانے کی کیمپین شروع کی ہے تاکہ انہیں بچے دانی سے جڑے سرویکل کینسر سے بچایا جا سکے۔ اور یہ بھی جانیے کہ دنیا کے محفوظ ترین ممالک کون سے ہیں جہاں لوگ گھروں کے دروازے بند نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سربین میں شامل رہیں گے، مگر پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں اپنی زمینی کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور منگل کے روز سے اسرائیلی فوج کی جانب سے مسلسل اور شدید بمباری کی جا رہی ہے۔ غزہ کی حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 59 افراد ہلاک اور کم از کم 386 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت کے مطابق 3 افراد قحط اور غذائی قلت کے باعث ہلاک ہوئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ غزہ شہر پر اسرائیلی فوج کی اس کارروائی کا مقصد یہ ہے کہ وہ پٹی کے سب سے بڑے شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کرے، جسے وہ حماس کا آخری گڑھ سمجھتا ہے۔ اسرائیلی فوجی دستے اب شہر کی سرحدوں پر آ گئے ہیں۔ غزہ پر قبضہ کرنے کا یہ اسرائیل کا طویل عرصے سے ایک منصوبہ تھا، جس پر اب باقاعدہ عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے ایک انکوائری کمیشن نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، تاہم اسرائیل نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق غزہ شہر جو پٹی کا سب سے بڑا شہر ہے، شدید اور بھاری شیلنگ کا نشانہ بنا ہے۔ ایک اسرائیلی فوجی اہلکار نے غزہ شہر پر اس کارروائی کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے اندازے کے مطابق شہر میں اب بھی 2000 سے 3000 کے درمیان حماس کے جنگجو موجود ہیں۔ دوسری جانب کینیڈا کی وزارت خارجہ نے غزہ شہر پر اسرائیل کے نئے زمینی حملوں کو خوفناک قرار دیا ہے۔ کینیڈا کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایکس پر جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی یہ حالیہ کارروائی انسانی بحران کو مزید سنگین کرنے اور یرغمالیوں کی رہائی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کو بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے غزہ شہر پر اس کارروائی کو حماس کے خلاف فیصلہ کن مرحلے کے آغاز کے طور پر بیان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین کے مشیر عدنان ابو حسنہ نے خبردار کیا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو 35 مربع کلومیٹر سے کم رقبے میں زبردستی دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
उन्होंने कहा कि ये तकरीबन 20 लाख अफराद को एक छोटे से इलाके में धकेलने के मुतरादिफ है। ताहम इसराइली फौज का अंदाजा है कि फौजी कार्रवाइयों के आगाज से अब तक 3,70,000 से ज़्यादा लोग गजा शहर छोड़ चुके हैं और इनखला की रफ्तार मुसलसल तेज़ हो रही है। ज़राए के मुताबिक अब भी शहर के अंदर 6 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते दोहा के मरकज़ में हमास के रहनुमाओं पर हमला जायज़ था क्योंकि कतर के हमास के साथ ताल्लुकात हैं। नेतन्याहू ने मंगल 16 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कतर हमास से राब्ते में है, वो हमास को पनाह देता है, उसे माली मदद और मुआवनत फराहम करता है। कतर के पास हमास पर दबाव डालने की ताकत थी जो वो इस्तेमाल कर सकता था, मगर उसने ऐसा ना किया, लिहाजा हमने जो किया वो बिल्कुल जायज़ था। दोहा में हमास रहनुमाओं पर इसराइली फौज का फ़ज़ाई हमला कतर पर बराह रास्त पहला हमला है जो अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। इसराइली फौज की इस कार्रवाई पर दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। नेपाल की नई वज़ीर आज़म सुशीला कार्की ने कहा है कि वो हालिया पुरतशद्दद मुजाहरों में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगी। BBC नेपाली सर्विस को खसूसी इंटरव्यू में उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मुल्क में इंतखाबात आइंदा 6 माह के अंदर अंदर करवा दिए जाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते बदउनवानी के खिलाफ होने वाले मुजाहरों के नतीजे में हुकूमत मुस्तफ़ी हो गई थी। इन मुजाहरों में 70 से ज़्यादा अफराद हलाक जबकि 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। मज़ीद तफसील बता रही हैं खटमंडो से सुमेरा हुसैन। उनका कर्ब अब गुस्से में बदल रहा है। मेरा बेटा मारा गया, ये औरत कह रही है। इतने सारे खानदान और इतना दुख। मुर्दा खाने के बाहर तस्वीर पकड़े अपनों की लाशों का इंतजार। एक सोगवार बाप जिनके 21 साला बेटे सुलूराज को सर में गोली मारी गई। मैं इस रियासत से पूछना चाहता हूँ, अगर वो मेरे बेटे को गोली मार सकते हैं तो फिर उसकी माँ और मैं भी हूँ, हम किसके लिए जिए? हम भी मरना चाहते हैं। सब कहते हैं वो रबड़ की गोली थी, रबड़ की गोली नहीं थी वो। अगर आप मेरे बेटे की लाश देखें तो आपको सुराख साफ नजर आएगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? एक हफ्ता हुआ है जब बदउनवानी के खिलाफ निकलने वाले हजारों मुजाहिरीन को आंसू गैस और गोलियों का सामना करना पड़ा था। This is one of the city's main hospitals. ये शहर के बड़े अस्पतालों में से एक है। ये उस जगह से ज्यादा दूर नहीं जहां एहतजाज हुआ था। इस अस्पताल में 160 से ज्यादा जख्मी लाए गए, जिनमें से 8 हलाक हो गए। बाज़ जख्मी अब भी अस्पताल में हैं। मैं तालिब इल्म हूँ। अभिषेक श्रीस्था को अस्पताल से जाने में 1 महीना लगेगा। वो समझते हैं कि उनके जख्मों का कोई जवाब नहीं था। उन्हें गोली मारने की इजाजत नहीं थी, मगर उन्होंने मुझे गोली मारी। ये सब हुकूमत और पुलिस की वजह से हुआ। यही सबब था हमारे एहतजाज का। हमें ये बदलना होगा, बस। नेपाल के लिए अब चैलेंज ये है कि एक ऐसी हुकूमत वजूद में आए जिसे अवाम का एतमाद हासिल हो। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी कैरियर में LK अडवाणी समेत कई सीनियर रहनुमाओं को 75 बरस की उम्र के बाद सियासत से रिटायर होने पर मजबूर कर दिया था, मगर अब खुद मोदी इसी उम्र को पहुंच गए हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि वो BJP में इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उनका कोई मुतबादिल लीडर नज़र नहीं आता, इसलिए रिटायरमेंट के उसूल पर अमल दरामद उनके लिए एक बड़ा सवाल है। तफसील शकील अख्तर से। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 75 बरस के हो गए हैं। सियासत में वैसे तो अमूमन उम्र की पाबंदियां नहीं होती, लेकिन इसका जिक्र इसलिए आया कि मोदी 11 साल कबल जब वज़ीर आज़म बने थे, उस वक्त उन्होंने अपने सियासी गुरु और BJP के सबसे बड़े रहनुमा LK अडवाणी और दीगर सीनियर रहनुमाओं को यह कहकर सियासत से रिटायर कर दिया था कि वो 75 बरस से ज़्यादा उम्र के हैं। कुछ महीनों से ये क़यासाराइयाँ की जा रही थीं कि क्या वो भी 75 के होने के बाद सियासत से रिटायरमेंट ले लेंगे। I never said that I will retire or someone should retire. लेकिन हाल ही में RSS के सरबराह के एक बयान के बाद ये सारी क़यासाराइयाँ बंद हो गईं। अब तो मोदी कभी कभी 2029 के इंतखाब की भी बातें करते हैं।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी। माहिरीन समझते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी वजीर आज़म बनने के बाद पिछले 11 बरस से हुक्मरां बीजेपी के सबसे ताकतवर रहनुमा हैं। वो बीजेपी और आरएसएस की सियासत का महवर हैं। बीजेपी अगर चाहे भी तो उन्हें हटा नहीं सकती, क्योंकि पार्टी में उनके लेवल का कोई दूसरा रहनुमा नहीं है। वो एक मकबूल रहनुमा है और इनफरादी तौर पर इतने ताकतवर हो चुके हैं कि सियासत और उनकी पार्टी उनके ही गिर्द घूमती है। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की बीजेपी के दौर में दर्जनों रहनुमा कौमी सतह पर आगे बढ़े थे। तजियाकार कहते हैं कि मोदी एक ऐसा बड़ा दरख्त है जिसके नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं उग सकता। उन्होंने गुजरात में कदरे गुर्बत में बचपन गुजारा और कम उम्री में ही आरएसएस में शामिल हुए, जहां उनकी नजरियाती और सियासी परवरिश हुई। 13 बरस तक गुजरात के वजीर आला रहे। 2002 के गुजरात के हिंदू मुस्लिम फसादात उनकी सियासी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बने। माहिरीन ये भी समझते हैं कि उनकी 11 बरस की वज़ारत उज़्मा का सबसे अहम पहलू यह है कि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के हिंदुत्व के नज़रिए को इंडिया के माशरे में घोल दिया है। मुल्क के आईनी और जमहूरी अदारे रफ्ता रफ्ता आरएसएस की नजरियाती गिरफ्त में आ रहे हैं। लेकिन ताकतवर मोदी को पिछले पार्लिमानी इंतखाबात में धचका लगा था। उन्हें मुकम्मल अक्सरियत नहीं मिल सकी थी। वो बाज़ इलाकाई जमातों की हिमायत से हुकूमत चला रहे हैं। बाज़ तजदियाकारों का कहना है कि मोदी अपना सियासी अरूज देख चुके हैं और अब सियासी तौर पर पहले के मुकाबले कमजोर हैं। आने वाले महीनों में बिहार और बंगाल असेंबली के इंतखाबात के नताइज का मोदी के सियासी मुस्तकबिल पर बराह रास्त असर पड़ेगा। मोदी जिंदाबाद। तजियाकारों का कहना है कि मोदी ने गुज़िश्ता 11 बरस के अपने इक़्तिदार में बीजेपी और आरएसएस के लिए जो नजरियाती और सियासी मकासद हासिल कर लिए हैं, वो बीजेपी का कोई दूसरा रहनुमा नहीं कर सकता था। अफगानिस्तान के सूबे बलख, कंधार और हिलमंद में तालिबान हुकूमत ने फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी आयद कर दी है। बलख के गवर्नर के तर्जुमान के मुताबिक ये फैसला तालिबान रहनुमा हैबतुल्लाह अखवंदजादा के हुक्म पर बुराई को रोकने के लिए किया गया है। हुकाम का कहना है कि जरूरत पड़ने पर मुतबादिल इंटरनेट निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये फैसला गवर्नर्स के इजलास में किया गया था और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में दीगर सूबों में भी नाफिज किया जाए। इंटरनेट की बंदिश से बैंकों, कस्टम्स और सरकारी इदारों के हुकाम मुतासर हो रहे हैं, जो ज़्यादातर फाइबर इंटरनेट पर इन्हिसार करते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर मुतबादिल ना मिला तो अफगानिस्तान में कारोबारी सरगर्मियाँ, बैंकारी निज़ाम और अवामी सहूलतें शदीद मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में सैलाब के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें फौज, नेवी रेस्क्यू 1122, PDMA और फलाई इदारों के साथ साथ निजी कश्ती मालकान भी शरीक हैं। तहम मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बाज़ निजी कश्ती मालकान रेस्क्यू के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा मुआवजा तलब कर रहे हैं, जिससे मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तफसील तुरहब असगर और फुरकान इलाही की इस रिपोर्ट में। वस्ती पंजाब के बाद इस वक्त सैलाब की तबाहकारियां जनूबी पंजाब में जारी हैं, जबकि पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। PDMA के मुताबिक तकरीबन 1200 कश्तियाँ जो हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जिसमें मुख्तलिफ इदारे भी शामिल हैं, जैसा कि फ़ौज, नेवी, रेस्क्यू 1122, PDMA, फलाही इदारे और कुछ प्राइवेट हजरात, यानी कि वो लोग जो कि इन कश्तियों के मालिकान हैं और सैलाब में अपनी कश्तियाँ लोगों को रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उनके हवाले से कुछ शिकायत भी सामने आई हैं कि बाज़ मालिकान सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों को रेस्क्यू करने का खासा भारी मुआवजा वसूल कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स से हमारी बात हुई जो कि अलीपुर से जिनका ताल्लुक़ है। उनका ये कहना था कि मेरे साथ 5 जानवर और घर के 4 अफराद थे और पर जानवर जो है 60,000 रुपये मुझसे मांगे गए और इंसानों को रेस्क्यू करने के अलग पैसे मांगे गए, जिस पर मैंने सोचा कि 3 जानवर बच जाएंगे, जिसके बाइस जो है मैंने 2 जानवर उसको कश्ती मालिक को दिए और हम सब रेस्क्यू होके वहाँ से सेफ महफूज मुकाम पे पहुँच गए। ऐसी कई शिकायत सामने आई हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कश्तियों का मामला खासा ज़ेर बहस इसलिए भी रहा है कि इनकी तादाद कम है और लोग जो रेस्क्यू होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये कश्तियाँ कुछ ऐसी भी हैं तकरीबन 4 के करीब जो हादसात का शिकार भी हुई, यानी कि उलट गईं, और इनकी बुनियादी वजह ये थी कि ओवरलोडिंग जो है लोगों की
وہ تھی اس کے اندر، یعنی کہ 20 سے 25 افراد تھے جو کہ ان کشتیوں پہ سوار تھے، جس کے باعث 11 افراد ہلاک بھی ہوئے۔ مقامی صحافیوں اور حکام کے مطابق ایک یہ بھی شکایت ہے کہ رات میں آپریشنز خاصے ڈسٹرب ہوتے ہیں کیونکہ کشتیوں کے اوپر نائٹ آپریشنز کی فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ فی الوقت اس معاملے کے اوپر کوئی خاص پالیسی ڈیفائنڈ تو نہیں ہے، لیکن پرائیویٹ مالکان کی طرف سے زیادہ معاوضہ وصول کرنے کی شکایات کے بعد حکومت پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ اس معاملے کو ہم ریگولیٹ کریں گے اور پرائیویٹ مالکان کو پیسے پنجاب گورنمنٹ دے گی۔ زیادہ تر حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کو ریگولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ مخصوص قسم کی پالیسی ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 15 ستمبر سے HPV ویکسین لگانے کی قومی مہم شروع کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق یہ ویکسین 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کو سرنج کے ذریعے دی جائے گی تاکہ انہیں بچہ دانی کے کینسر سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس مہم کا مقصد پاکستان میں خواتین کی صحت کے بڑے خطرے کو کم کرنا ہے۔ اس بارے میں سنیے کومل فاروق کی یہ رپورٹ۔ گورنمنٹ نے پاکستان میں 15 ستمبر سے 9 سے 14 سال کی لڑکیوں کو سرنج کے ذریعے HPV ویکسین لگانے کی کیمپین شروع کی ہے تاکہ انہیں بچے دانی سے جڑے سرویکل کینسر سے بچایا جا سکے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راشدہ بتول کہتی ہیں کہ پاکستان میں ہر سال اندازاً 5000 خواتین سرویکل کینسر کا شکار ہوتی ہیں اور ان میں سے 3000 خواتین کی موت بھی اسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سرویکل کینسر ویکسین اور اس کی کیمپین کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوچھے جانے والے چند سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں دیں گے۔ سرویکل کینسر کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ سرویکل کینسر بچہ دانی کے منہ پر بننے والا کینسر ہے۔ ہیومن پیپیلوما وائرس یعنی HPV انسانی جسم میں جلد کی تہوں میں پایا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق HPV انفیکشن ہی 70% سے زیادہ مریضوں میں سرویکل کینسر کا سبب بنتا ہے، جو بریسٹ کینسر کے بعد دنیا میں خواتین میں پایا جانے والا سب سے عام کینسر ہے۔ اس کینسر کی ابتدائی تشخیص پیپ سمیئر اسکریننگ کے ذریعے ممکن ہے۔ HPV ویکسین کی قومی مہم میں صرف 9 سے 14 سال کی کم عمر بچیوں کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے؟ WHO کے مطابق HPV ویکسین اس وقت بہترین کام کرتی ہے جب بچیاں 9 سے 14 سال کے بیچ HPV وائرس کا شکار ہونے سے پہلے یہ ویکسین لگوا لیں، کیونکہ ویکسین صرف انفیکشن سے بچاتی ہے۔ وائرس لگ جائے تو پھر ویکسین جسم کو اس سے نجات نہیں دلا سکتی۔ HPV کی علامات کیا ہیں؟ HPV وائرس کی تقریباً 100 سے زیادہ ٹائپس ہیں۔ اس انفیکشن کی زیادہ تر علامات ظاہر نہیں ہوتی، البتہ اس کی کچھ اقسام میں ہاتھ، پاؤں اور منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں۔ بہت سے متاثرہ مریضوں کو کافی عرصے تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ انفیکشن کا شکار ہو چکے ہیں، اور بہت سے کیسز میں بہتر امیونٹی کی وجہ سے بغیر کسی علاج کے اس وائرس سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن HPV کے زیادہ ہائی رسک کیسز میں ٹیشوز کی غیر معمولی گروتھ کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ ڈاکٹر راشدہ کے مطابق HPV ویکسین 149 ممالک میں پہلے ہی استعمال کی جا چکی ہے، تو کہیں بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس رپورٹ نہیں ہوئے۔ ویکسین لگانے کے بعد ہلکا بخار، انجیکشن لگنے کے مقام پر ہلکی سی سرخی ہو سکتی ہے جس کے لیے پیراسیٹامول لی جا سکتی ہے۔ ویکسین کی کتنی ڈوزز چاہیے ہوتی ہیں؟ WHO کے مطابق ویکسین کی 1 یا 2 ڈوزز کافی ہوتی ہیں۔ جن افراد کی امیونٹی کم ہے ان کو 3 ڈوزز بھی دی جا سکتی ہیں۔ ویکسین کا اثر کم از کم 15 سے 20 سال تک ہوتا ہے اور بعض کیسز میں زندگی بھر کے لیے تحفظ دیتی ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی جانب سے پیش کیے جانے والے گلوبل پیس انڈیکس کے مطابق دنیا کے 5 سب سے پرسکون ممالک میں آئس لینڈ، آئرلینڈ، نیوزی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ شامل ہیں۔ ختیجہ عارف نے ان حکومتی پالیسیوں اور سماجی ماحول کا جائزہ لیا ہے جو ان ممالک کو عوام کے رہنے کے لیے ایک پرسکون اور محفوظ جگہ بناتا ہے۔ آپ بھی سنیے۔ پرامن ممالک کے انڈیکس میں جو ممالک تقریباً 2 دہائیوں سے سر فہرست رہے ہیں، اس سال بھی وہی ہیں، اور ان کا سر فہرست ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پرامن پالیسیز کے طویل المدتی اثرات کتنے مستحکم ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آئس لینڈ کی بات کرتے ہیں۔ آئس لینڈ سن 2008 سے مسلسل پہلے نمبر پر ہے۔ یہ بدستور دنیا کا سب سے پرامن ملک ہے جو تحفظ اور سلامتی، تنازعات اور فوجی اخراجات کے تینوں اہم شعبوں میں سب سے آگے ہے۔ رواں سال اس نے مزید 2% بہتری ریکارڈ کی اور دوسرے نمبر پر آنے والے ملک سے فاصلہ اور بڑھا لیا ہے۔ آئس لینڈ میں پیدا ہونے والی انگا روس دوتی اور انٹرپریٹ ٹریول نارتھ یورپ کی جنرل مینیجر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ آئس لینڈ کا سرد موسم ہمیشہ محفوظ ماحول کا احساس نہیں دلاتا، لیکن یہاں کی کمیونٹی اس کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ رات کو اکیلے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بچے کیفے یا دکانوں کے باہر پریم میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں
और वालिदैन अंदर खाने या खरीदारी में मसरूफ होते हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी हथियार नहीं रखती। इंगा कहती हैं कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में आइसलैंड की दुनिया भर में मशहूर मुनफरिद जेंडर इक्वालिटी की पॉलिसीज़ अहम किरदार अदा करती हैं। बराबरी के मौक़े और मजबूत समाजी निज़ाम सबके लिए एक महफूज और मुनसिफ़ाना माशरा बनाता है। वो कहती हैं कि मुसाफिरों को भी यहाँ की रोज़मर्रा की सरगर्मियों में शामिल होकर यहाँ के अमन सुकून का एहसास होता है। उनका कहना है कि आप जियोथर्मल पूल में तैरने जाएं और अजनबी लोगों से हॉट टब में बातचीत करें, किसी पहाड़ पर चढ़ें, चाहे माउंट ईसिया हो या हाईलैंड्स का कई दिनों का हाइकिंग का सफ़र। असल आइसलैंड आपको यहाँ की फलती फूलती मौसीकी, आर्ट और अहम मकामात से दूर फितरत के मनाजिर और हर तरह के मौसम में देखने को मिलता है। आइसलैंड के बाद बात आयरलैंड की। आयरलैंड अगरचे 20वीं सदी के अवाखिर में तनाज़ात का शिकार रहा, लेकिन आज का आयरलैंड अमन सलामती को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। इस मुल्क ने हर साल अपनी फौजी सरगर्मियों में कमी लाकर नुमायां कामयाबी हासिल की है और उन ममालिक में शामिल है जहाँ घरेलू और बैनुल-अक़वामी तनाज़ात सबसे कम हैं। माशरती तहफ़्फ़ुज़ और सलामती में भी ये टॉप 10 ममालिक में है जहाँ जराइम और तशद्दुद की शरह सबसे कम है। अमन सुकून का ये एहसास पूरे मुल्क में देखा जा सकता है। किलडेयर के रिहायशी और किल की कासल में डायरेक्टर ऑफ एक्सपीरियंसेस जैक फिट्ज़साइमन्स कहते हैं कि चाहे आप किसी छोटे कस्बे में हों या बड़े शहर में, यहाँ कम्युनिटी का जज्बा बहुत गहरा है। लोग आपको खुशामदीद करते हैं और आपको घर जैसा एहसास दिलाते हैं। उनके मुताबिक मजबूत समाजी सहूलतें और कम्युनिटी वेलफेयर पर तवज्जो समाजी गैर बराबरी और तनाव को कम करती है। उनका कहना है कि ये वो जगह है जहाँ लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आप अजनबी से मदद मांगे तो वह आपके लिए बढ़ चढ़कर कोशिश करता नजर आएगा। आलमी सतह पर आयरलैंड अपनी फौजी गैर जानिबदारी के मौक़िफ़ पर कायम है। ये यूरोप के उन 4 ममालिक में से एक है जो नेटो का रुकन नहीं है और तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देता है। फिट्ज़साइमन्स कहते हैं कि मुझे आज भी इस बात पर हैरत होती है कि यहाँ आने वाले आयरिश अवाम की दोस्ताना फितरत पर इतने हैरान क्यों होते हैं। हमारे लिए ये नेचुरल सी बात है क्योंकि मेहमान नवाजी हमारी सकाफत का हिस्सा है। आयरलैंड की सुकून भरी फिजा दिल को भी सुकून देती है। फिट्ज़साइमन्स के मुताबिक यहाँ आपको हर वक्त करीब ही कोई किला, खामोश जंगल में सैर या किसी पुरसुकून पब में रिवायती मौसीकी सुनने का मौका मिल जाता है। यहाँ जिंदगी आहिस्ता और पुरसुकून चलती है और लोग अब भी गुफ्तगू और कहानियाँ सुनाने को अहमियत देते हैं। तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। इस साल न्यूजीलैंड 2 दर्जे तरक्की करके तीसरे नंबर पर आ गया है, जिसकी वजह सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में बेहतरी के साथ साथ मुजाहिरों और दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ असरात में कमी है। बहरुल काहिल का ये जजीरा नुमा मुल्क जुग्राफियाई तौर पर बैरूनी तनाज़ात से महफूज रहा है, लेकिन इसकी अंदरूनी पॉलिसीज़ भी शहरियों को अमन सुकून का एहसास देती हैं। जिंदगी भर न्यूजीलैंड में रहने वाली मिशा मैनकस ओपी ग्रीनर पेस्टर्स नामी रिलोकेशन फर्म में क्लाइंट एक्सपीरियंसेस की डायरेक्टर हैं। वो कहती हैं कि न्यूजीलैंड के असलहा के कवानीन दुनिया के सख्त तरीन कवानीन में शामिल हैं और यकीनन तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में ये अहम किरदार अदा करते हैं। उनके मुताबिक ये वो जगह है जहाँ बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं, लोग अपने घरों के दरवाजे बंद नहीं करते और अगर सड़क पर कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो ड्राइवर रुककर मदद करते हैं। यहाँ दूसरों पर और हुकूमती निज़ाम पर एतमाद है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बरादरी का हकीकी एहसास पैदा करते हैं। मजबूत समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत आम्मा की आलमी सतह की सहूलतों के साथ न्यूजीलैंड के लोग फितरत से रब्त और हम आहंगी को कीमती समझते हैं। चाहे साहिल पर चहलकदमी हो, जंगल में हाइकिंग या सितारों भरे आसमान के नीचे शराब नोशी, ये सब उनके पुरसुकून माहौल का हिस्सा है। कम्युनिटी का ये जज्बा हर उम्र के लिए त्योहारों और तकरीबात की शक्ल में भी नजर आता है, जिनमें फैमिली के लिए दोस्ताना माहौल पर जोर होता है। मैनकस ओपी कहती है कि खूबसूरत मनाजिर के अलावा यहाँ के लोग मुखलिस है। यहाँ की सकाफत भरपूर और हर जगह मौजूद है और जिंदगी की धीमी रफ्तार आपके नुक्ते नज़र को बदल देती है। उनका कहना है कि मेरी एक क्लाइंट ने कहा था कि अगरचे न्यूजीलैंड बहुत हसीन है, लेकिन असल ताकत इसके लोग हैं। अब बात ऑस्ट्रेलिया की। इस साल ऑस्ट्रेलिया 1 दर्जे नीचे सरक गया और चौथे नंबर पर आ गया है, मगर अब भी
तमाम शोबों में इसकी कारकर्दगी बुलंद सतह पर है। आयरलैंड की तरह ऑस्ट्रेलिया भी आईनी तौर पर गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसके बाइस वो नेटो जैसे फौजी इतिहाद का हिस्सा नहीं। उनकी ये पॉलिसी मुल्क को अपनी तवज्जो और वसाइल अंदरूनी तरक्की पर मरकूज रखने का मौका देती है। स्पा होटल यागडोफ के मालिक आर्मिन फुडशलर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की दहाइयों पुरानी गैर जानिबदारी की पॉलिसी का मतलब ये है कि ये मुल्क अपने वसाइल तनाज़ात पर नहीं बल्कि अवाम पर लगाता है। मजबूत समाजी तहफ़्फ़ुज़, आलमी मेयार की सेहत की सहूलतें और आला तालीमी निज़ाम इस्तेहकाम और एतमाद को परवान चढ़ाते हैं। वो इस्टुबाई वैली के न्यू स्टिफिट में रहते हैं, जहां लोग निस्फ शब को रीड्स दरिया के किनारे टहलते हैं। घरों के दरवाजे बंद नहीं किए जाते और कैफे के बाहर साइकिलें बगैर ताले के खड़ी रहती हैं। वो कहते हैं कि महफूज होना सिर्फ आदाद शुमार का हिस्सा नहीं बल्कि ये जिंदगी जीने का एहसास है। 5वां मुल्क स्विट्जरलैंड है, लेकिन हम यहाँ एशियाई मुल्क सिंगापुर का जिक्र कर रहे हैं, जो कि फहरिस्त में बहुत नीचे नहीं बस 6ठे नंबर पर है। अपनी पोजीशन बरकरार रखते हुए सिंगापुर इस साल भी 6ठे नंबर पर है और टॉप 10 में शामिल वाहिद एशियाई मुल्क है। जापान 12वें और मलेशिया 13वें नंबर पर है। सलामती और तहफ़्फ़ुज़ में ये खास तौर पर बुलंद दर्जे पर फाइज है। हालांकि फीकस आमदन के लिहाज से ये फौजी अखराजात के मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले ममालिक सिर्फ शुमाली कोरिया और कतर से पीछे है। क्योंकि यहाँ कोई जारी तनाज़े या अंदरूनी बदअमनी नहीं है, इसलिए ज़्यादातर शहरियों को मजबूत तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। यहाँ के एक रिहायशी जिनरुन हैन कहते हैं कि मैं रात गए तन्हा घूमता हूँ और खौफ महसूस नहीं करता। घर जाना यहाँ इतना दबाव या परेशानी की बात नहीं जितना बड़ी शहरी आबादियों में होता है। यहाँ निज़ाम पर 100% एतमाद और दूसरों पर भरोसा किया जाता है, जो एक पुरसुकून, ख्याल रखने वाला और महफूज माहौल बनाता है। अगरचे सिंगापुर की क़दामत पसंद पॉलिसियों की वजह से हम जिन्स शादियाँ अब भी ममनू हैं और LGBT+ कम्युनिटी को मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं है, लेकिन समाजी तरक्की नज़र आती है। वो कहते हैं कि चाहे आप मकामी हों या मेहमान, रात 2 बजे दरिया के किनारे चहलकदमी करें, रात गए स्ट्रीट फूड वेंडर से खाना खाएं या अंधेरे के बाद पार्क का रुख करें, ये सब आज़ादी का एहसास दिलाता है। इन सारे ममालिक में जो एक बात सबसे कॉमन है वो है सेंस ऑफ कम्युनिटी। हुकूमतों की जानिब से अवाम को तरजीह देना और अपने इक़दार का दामन थामे रखना। हम में से कौन है जो अमन नहीं चाहता, इसलिए इस उम्मीद के साथ कि ग्लोबल पीस इंडेक्स की फहरिस्त में ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक अपना नाम दर्ज करें और ख़ास तौर से वो ममालिक जहां हम और आप रहते हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने सरकारी दौरे पर इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं और कुछ देर में उनकी मुलाकात बरतानिया के बादशाह से विंडसर महल में होगी। इस महल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा 2 के मुकदमे की समाअत रावलपिंडी के अडियाला जेल में हुई और इस मुकदमे की समाअत के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को पैगाम दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप समझते हैं हम टूट जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.